Hello students, very good morning to all of you. Dear students of class 3rd, students, how are you all? Are you fine? Okay, I want also you all just be fine. Okay students, so now today I am here with the English course book. So let's take out your book and open the page number. Let me show you today's page number 71. Page number 71. So all, let's start page number 71 there, and as well as we are taking the chapter 6. The chapter name is Meet Mr. Crab. Yesterday there was completed the explanation of the chapter, and now it's time to move to the exercises. Okay, in this page number. So have you opened you all? कर लिया सब लोगों ने open अपनी book? Okay, good. So start from firstly spelling bee. Students, we have some words for practice. Practice spelling these words. You have some words from this chapter which you have to practice, okay, with their spellings. So start first, pincers. Spelling of this P-I-N-C-R-S, pincers. Next, mysterious, okay. Next, pincers, as well as the crabs are having their pincers. Mysterious are mystery. Swiftly means very smoothly. Gracefully means very beautifully, okay. Defending, or you can say protecting. Enemies, ठीक है, enemies होना, शत्रु होना. themselves means अपने आप को. bodies means parts of bodies जो होते हैं. clothes, as everyone used to wear these clothes. and closely, okay, means very near. so ये आपके सारे words हैं, इसको आप read करेंगे, ठीक है. इन सारे words को read करेंगे and with spelling इसको learn करेंगे, okay. So now come on the next exercise, that is I wonder, okay. So we have some points here. Some super cool facts about crabs, means we have some super cool fact, कुछ facts हैं, कुछ means सच्चाई है, कुछ सच्ची चीज़ें हैं जो कि crabs के बारे में है. The pea crab is the smallest crab. देखिए अभी हम लोगों ने crab के बारे में read किया था ना, and with the cousins also. And now in this point we are reading about the pea crab. देखिए pea crab होता है जो कि सबसे smallest crab होता है, ठीक है. It is 0.272 to 0.47 inches long. और इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई जो है, ठीक है, ये आपकी पॉइंट्स होती हैं. एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट अमेजिंग थिंग्स है जो कि आई थिंक वी डोंट नो अबाउट दिस. The Japanese spider crab is the biggest crab. Which is the biggest crab? Biggest crab कौन सी होती है? जो जापानी जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर क्रैब होती है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी क्रैब है, ठीक है ना. It measures about 20 feet between its claws. और इसकी मेजरिंग जो की गई है वो 20 फीट की गई है between its claws, ठीक है ना. इनके क्लॉज की भी जो मेजरिंग हुई है वो इसके अकॉर्डिंग हुई है. तो ये सारी आपकी वंडरफुल थिंग्स थी, ओके, अमेजिंग थिंग्स था विच यू हैव रीड, ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट. लेट्स ट्राई फर्स्ट एक्सरसाइज. यू हैव द फर्स्ट, complete the sentences with the correct options. Students, now we are moving to the exercise first, and we have to complete the sentences with the correct option, ठीक है. यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट सेंटेंसेज है, एंड आफ्टर दैट यू हैव द ऑप्शन, 3 ऑप्शंस. सो विद इन दीज 3 आपको 1 करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ओके. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? यू विल फिल दैट करेक्ट ऑप्शन इन दिस ब्लैंक. सो स्टार्ट. क्रैब्स, फर्स्ट आपका है क्रैब्स, ओके. एंड दैट्स यू हैव 3 ऑप्शंस. आर गुड डांसर्स, आर ग्रेसफुल लाइक सिंगर्स, मूव वेरी ग्रेसफुली. सो अकॉर्डिंग टू this chapter, what is the correct option? Yes, crabs move very gracefully. crab जो है बहुत ही gracefully move करते हैं, है ना. ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd नंबर, C नंबर. तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे, move very gracefully. क्लियर? ओके, कम ऑन नेक्स्ट. crabs by nature are very. crab जो होते हैं वो by nature कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? ऑप्शन यू हैव shy, dangerous and lazy. Yes, according to this chapter we have read that crabs by nature are very shy. crab जो है बहुत ज़्यादा shy नेचर के होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे साई फिल करेंगे. नेक्स्ट आपका है द हर्मिट क्रैब
okay, and then options we have, first, doesn't live in a cell, lives in a borrowed cell, builds a big cell for itself, hermit crab, okay, which is क्रैब्स कजिन, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं, ये एक बोरोड सेल में रहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे जो ये क्रैब्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपनी सेल क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ बोरो करते हैं, उधार देते हैं, इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल कर देंगे, लिव्स इन अ बोरोड सेल। नेक्स्ट, द रॉबर क्रैब क्लाइम्स अ ट्री टू गेट अ मिल। रॉबर क्रैब जो है वो ट्री पे क्लाइम करता है, वाई, फॉर गेटिंग द मेल्स, ठीक है। यहाँ पे गेटिंग द मेल्स सी ऑप्शन है, ये आपके दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, इसको रॉन्ग कर देंगे। सी, फॉर गेटिंग अ मेल, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड यू विल फिल ऑल्सो टू दिस ईयर, ओके स्टूडेंट्स। So now it was the page number 71. We will move to the next page number 72. So let's come there. Come with me on page number 72. Yes, it's here. Okay. So start to see the exercises. Next exercise I think there is, yes. Let's try 2 exercise. कौन सी exercise है? Let's try 2. Okay. तो start करते हैं. Now that you have read all about crabs, means students आप सब लोगों ने crabs के बारे में read किया है. Yes. Just in this chapter we have read about the crabs bodies, okay, our crabs walking, our crabs cousins, ठीक है, our friends. Label the parts of the crab's body or the picture. Label the parts of crab's body. यहाँ देखिए, यहाँ पे crab के body के parts दिए गए हैं, ठीक है, उनके body के picture दिए गए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनके बॉडी पार्ट्स के नेम को जैसे कि हाईलाइटेड किया गया, अंडरलाइन किया गया, आप यहाँ पे राइट कर देंगे। देन यूज़ दी वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस बिलो, एंड देन आपको क्या करना है, देन आपको इन सारे वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो इट्स नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी नहीं है कि आप क्या करेंगे, इन सारे वर्ड की हेल्प से ही सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर की हेल्प से भी इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके पार्ट्स, जो इनके पार्ट्स हैं बॉडी के। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग हेयर, ओके, देयर इज़ अ पार्ट एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट देयर, ओके। तो ये जो इनके हैं, ये क्या है, ये क्लॉज हैं, ये इनके क्लॉज हैं, ओके। ये जो क्रैब्स के क्लॉज मीन्स पिंसर्स, आप लोगों ने रीड किया था ना, पिंसर्स। ये क्या करते हैं, व्हेन एवर समवन डिस्टर्ब टू देम दे जस्ट यूज देयर पिंसर्स, ओके, टू अटैक देम, ओके। पिंसर्स मीन्स क्लॉज, ये आपका, इनको क्लॉज भी आप कह सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ आर क्लॉज, ओके। एंड कम ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट देखिए, ये 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी हियर दिस 2 आर लुकिंग देयर आईज, ठीक है। ये इनके आईज होते हैं, क्या होते हैं, आईज होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है वो इनके एंटीना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं पार्ट्स, देखिए ये जो हैं इनके पार्ट्स, ये सारे इनके लेग्स होते हैं, ठीक है। और ये ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दीज आर देयर व्हाट, एब्डोमेन मीन्स जिसको आप सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके सारे पार्ट्स होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू फिल इट, और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। मोस्ट क्रैब्स हैव अ हार्ड सेल विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक, मीन्स बहुत सारे ऐसे क्रैब्स होते हैं जिनके पास एक हार्ड सेल होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोस्ट क्रैब्स हैव हाउ मेनी लेग्स, 10 लेग्स, ठीक है। बहुत सारे क्रैब्स के पास 10 लेग्स होते हैं। देयर 2 फ्रंट लेग्स हैव पिंसर्स, जैसे कि जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ना आप लोग को, 2 जो है इनके फ्रंट लेग्स, जैसे ये हैं और एक ये है, ठीक है। क्लॉज मीन्स इनके पिंसर्स हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर लेग्स आर बेंड, उनके जो लेग्स होते हैं बेंड आउटवर्ड्स एंड एट एन एंगल, देखिए इनके जो लेग्स हैं वो ऐसे बेंड किए हुए हैं ना, ऐसे झुके हुए हैं, देखिए बेंडिंग पे है ना, ऐसे बेंडिंग पे है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड की तरफ ये बेंड होते हैं। एज द क्रैब्स ग्रो बिगर दे थ्रो देयर ओल्ड सेल, जैसे ही क्रैब्स ग्रो होते हैं ये अपने ओल्ड सेल्स को थ्रो कर देते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर मोर देन 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स, देयर आर मोर देन 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स, और इस तरह से 600
more types of crabs you can get in this world. Okay students, so these are your today's exercise. So let's start to complete it. And also try to understand this picture, and then according to this picture complete this fill in the blanks. So complete your book today, and also try to do the next exercise also at home. Students, so now thank you. Have a beautiful day.